Good evening, sir. Good evening. Please switch on your videos, everyone. Lara, there is one small change in the schedule basically. Uh, ये जो biology की class है, that used to be at 6 to 7 on Wednesday. That is going to move to 5 to 6 on Wednesday. So, is it okay or So I won't be able to attend it then. I'll have practice. you have your swimming coaching going on? Yes, sir. So one day can't be managed. Wednesday, no. So I won't be allowed to. Okay. Let me see what else can I do. I'll just see. Okay. Yes, sir. चलो अभी हम लोग को फिजिक्स करना है. So electric circuits. ये हम लोग पिछली क्लास में we did this slide and we started this slide and we stopped. So we'll continue from here. So a continuous conduction path consisting of wires and other resistances and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current is. नहीं नहीं, तुम लोग ने ज्यादा पढ़ा दिया था ना, मैंने ओम्स लॉ करा दिया था. आई एम सॉरी, ये दूसरे बैच का मैंने ओम्स लॉ करा दिया था ना, ये न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे मेरे ख्याल से. So we were on resistance. रेजिस्टेंस वाली चीज करनी थी. मतलब डिड वी स्टार्ट रेजिस्टेंस एंड वी हैड टू स्टार्ट. Sir, we have started already. So we have done these slides. Yes, sir. Yeah, we did this. कंडक्टेंस से स्टार्ट करना था. So conductance is nothing but reciprocal of resistance. So in mathematically, if we write, conductance is equal to 1 upon resistance, the reciprocal of resistance. So resistance हमें क्या बताता है? The amount of if the current flows in a circuit, in a conductor, then the inherent property of that conductor to resist the flow of current is called resistance. And conductance means the property of a conductor due to which a current flows through it is called conductance. So more the conductance, more the current will flow through that particular wire or through the conductor. So reciprocal of resistance is known as conductance. It is just the opposite of resistance. So amount of current which is allowed to flow through a conductor is basically conductance. So it is denoted by the letter capital G, right? Resistance by capital R and this by capital G. So conductance G is equal to 1 upon resistance. Now resistance has a unit of ohm. So 1 upon R, conductance will have a unit of ohm inverse. So the reciprocal of resistance is conductance.
it is denoted by the letter capital G. Thus conductance is equal to 1 upon resistance. Now unit is ohm inverse, right, or Siemens. This is another unit which has the same meaning. The symbol for this is capital A, right? So you can see that it is 1 by ohm. So when ohm is taken upward, the exponent of that becomes negative. And 1 by x is written as x raised to the power minus 1. So 1 by ohm will be written as ohm raised to the power minus 1. So conductance is reciprocal of resistance. Its unit is ohm inverse or Siemens. These are the units of it. Clear? Yes, sir. Now if we go to the next slide, now limitation of Ohm's law. So we said that Ohm's law is mostly valid for all the conductors, but there are certain conductors where Ohm's law is not valid. There are certain cases where Ohm's law is not valid. Means the current is not proportional to voltage. So in that case, if you draw the VI graph, so VI graph will be something like this. So it will not be a straight line. If I draw voltage current graph, right? So then in that case, what you will find is it is not a straight line. If it is not a straight line, means it does not follow Ohm's law. So this, if for a material, Ohm's law is not followed, so it does not follow Ohm's law. Now, Ohm's law is obeyed only when the temperature of the conductor remains constant. Means if the temperature changes, the resistance will also change. And the Ohm's law, जो हम कह रहे हैं V is equal to I into R. If resistance changes, voltage or current, that will also change. If voltage is constant, current will change in that case. So Ohm's law is obeyed only when the temperature of a conductor remains constant. If the temperature is not constant, Ohm's law will not be valid. Now VI ग्राफ वोल्टेज करंट ग्राफ, VI ग्राफ का मतलब वोल्टेज करंट ग्राफ. तो अगर एक ग्राफ में वोल्टेज इज टुवर्ड्स द y axis and current is towards the x axis, so we get a VI graph, and the slope of this VI graph, let's say if we have drawn a VI graph, the slope of this, slope का मतलब समझते हो ना तुम लोग, ग्राफ मोशन वाले चैप्टर में किए होगे 9th क्लास में. So slope means the angle theta if it is making. So tan theta, tan is basically ये ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी 10th क्लास में आप लोग करोगे. तो अभी के लिए जनरल टर्म्स के लिए आप ये समझ लो कि द इंक्लिनेशन ऑफ दिस इज बेसिकली स्लोप, राइट? इंक्लिनेशन हियर इज मोर, हियर इट इज लेस, similarly here it is less than this portion. So slope of A is greater than slope of B is greater than C. So slope of VI graph, is resistance. अब स्लोप होता क्या है किसी भी ग्राफ का, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी किया था कि स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज y upon x. है ना? y upon x means this distance divided by this distance will give you the slope of this graph, right? So similarly यहाँ पे अगर हम स्लोप बात करेंगे तो स्लोप क्या है? बेसिकली ये डेल्टा v upon delta a, y by x. So y by x is the slope of this graph. So slope of this graph will be equal to delta v upon delta I, which is actually equal to resistance R. So in a VI graph, कभी कभी ग्राफ बना हुआ होगा या आपको प्लॉट करना होगा,
तो आप जब ग्राफ को प्लॉट करोगे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जैसे ग्राफ को प्लॉट करते थे, यहाँ पे y के जगह वोल्टेज होगा और x के जगह करंट होगा, उसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे, तो दैट स्लोप विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वी ग्राफ, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. So a graph is plotted for V against I. V against I means V is y-axis and I is x-axis. By taking V on y-axis and I on x-axis, which is found to be a straight line as shown in the figure, this verifies the Ohm's law. So if you have to find the resistance here, you will find it by resistance R is equal to delta V by delta I, y upon x. This is equal to the slope of this graph, and that slope is actually the resistance. So let's say यहाँ पे वोल्टेज देखो, ये वोल्टेज VB दिया हुआ है, यहाँ VA दिया हुआ है, तो डेल्टा V मतलब कि चेंज इन वोल्टेज कितना हो रहा है, VA माइनस VB हो रहा है, डिवाइडेड बाय डेल्टा I, यहाँ पे करंट IC दिया हुआ है, यहाँ करंट IB दिया हुआ है, so this is IC minus ID. This will give the resistance. Is it clear, Rucho? Yes, sir. Clear to everyone? Yes, sir. Now the slope of VI graph, slope of the straight line on VI graph is given by delta V by delta I, gives the resistance R of the conductor. So resistance of a conductor is delta V upon delta I, that is slope of V versus I graph, yeah, VI graph. Obviously, Sir? yes. Sir, what is delta? डेल्टा मीन्स चेंज इन वोल्टेज। डेल्टा का हमेशा मतलब होता है चेंज। तो अगर मैं डेल्टा वी लिखता हूं, मतलब चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज के वजह से ही तुमने जब अभी जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, ये इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना था, वीबी था, और इस पॉइंट पे वोल्टेज वीए था। तो चेंज क्या हो गया, ये चेंज हो गया वी ए माइनस वी बी, जिसको हम लोग डेल्टा वी लिखते, Okay, sir. ठीक है। वी ए क्या हुआ, ये यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस हो गया, और वी बी क्या हो गया, ये हो गया। तो वी ए माइनस वी बी करोगे तो ये बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। सो कह रहा है ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना रेजिस्टेंस होगा। अभी तुरंत हम लोग बात भी कर रहे थे ना, हम लोगों ने वी आई ग्राफ 3 बनाए थे। क्वेश्चन ये काफी आता है, ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ रहेगा और तुमको लिखा होगा यहाँ रेजिस्टेंस R12 है, R2 है, R3 है, और तुम्हारे पास ऑप्शंस दिए होंगे। पहला ऑप्शन R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, दूसरा ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ये था, ऑप्शन बी में R1 लेस देन R2 लेस देन R3, तीसरा ऑप्शन बोलेंगे R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, और चौथा ऑप्शन मान लो बोल दिया नन ऑफ दीज, है ना, जो कि सबको बड़ा अच्छा लगता है। नन ऑफ दीज करने में बहुत मजा आता है, मार देते हैं, है ना, आंख बंद करके, राइट। तो वैसा तो करना नहीं है हम लोगों को। अब देखो जिसका स्लोप ज्यादा, किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, इस वाले का स्लोप सबसे, R1. R1 का स्लोप सबसे ज्यादा है। सिमिलरली R2 का स्लोप उससे कम और R3 का स्लोप उससे कम। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। लिखा हुआ है ना, ग्रेटर इज द स्लोप ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। तो बिकॉज R1 का स्लोप ज्यादा है, रेजिस्टेंस R1 विल बी ग्रेटर देन R2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन R3। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. प्लीज राइट दिस डाउन, इसको लिख लो कहीं पे, R1 R2 R3 वाला। जो जो चीजें हम लोग कर रहे होते हैं उसको लिख लिया करो। Written, sir. Alia, you should switch on your camera. Why don't you switch on your camera?
जस्ट a second. लिख लिया ना बच्चों, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब ओमिक रेजिस्टर, भाई ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सीबीएसई में नहीं पूछा जाता, बट अभी रेजिस्टेंस की बात आई है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, वन इज ओमिक रेजिस्टर एंड अदर इज नॉन ओमिक रेजिस्टर। सो एक ओमिक रेजिस्टर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा नॉन ओमिक resistor, right? So ohmic resistor क्या हुआ, the conductor which obey the Ohm's law are called ohmic resistor, और इसको लीनियर रेजिस्टेंसेस कहते हैं। क्यों लीनियर रेजिस्टेंस कहते हैं? क्योंकि इनका ग्राफ लीनियर होता है। वी ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट्स व्हाई these are known as linear resistances. For such resistors, a graph plotted for the potential difference V against I is a straight line passing through the origin. तो हमारा यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओमिक रेजिस्टर्स बोलेंगे। अगर हम लोगों ने वी ग्राफ प्लॉट किया एक ओमिक रेजिस्टर का, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट? नाउ इफ वी गो टू द नेक्स्ट slide, non-ohmic resistors. Non-ohmic resistors are those resistors which do not obey the Ohm's law. So the conductor which do not obey the Ohm's law are called non-ohmic resistors or non-linear resistances. For these conductors, the graph plotted for the potential difference V against current I is not a straight line, but it is a curve. So if you plot V versus I, it is not a straight line, but it is a कर्व, राइट? तो अगर हम लोगों ने वी ग्राफ बनाया और ये कर्व लाइन आ गया, तो ये रेजिस्टर क्या कहलाएगा? नॉन ओमिक रेजिस्टर कहलाएगा। Sir, can you give some example of such kind of conductors? सेमीकंडक्टर्स है, नॉट कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जितने भी हैं ये नॉन ओमिक है। इनका अगर वी ग्राफ प्लॉट करते हो तो कुछ इस तरह से आता है। Okay, sir. तो यहाँ पे ये देखो, ये पूरा नॉन ओमिक इस तरह से, मतलब स्ट्रेट लाइन, इसके बाद स्ट्रेट लाइन होता है, बट इस जगह पे तुम देखोगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको नॉन ओमिक रेजिस्टर कहते हैं। जितने सेमीकंडक्टर्स है ना, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उन सब का इस तरह से बना। जैसे बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, उसमें जो हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं, आपने देखा ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर जो हम लोग टंगस्टन को यूज करते हैं, इसका टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा वेरी करता है, और इसीलिए ये क्या होता है? नॉन ओमिक रेजिस्टर होता है। जो टंगस्टन है, हम लोगों ने क्या देखा, जो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करे वो ओमिक रेजिस्टर है, और जो वेरी करेगा बहुत ज्यादा वो नॉन ओमिक रेजिस्टर होगा। तो टंगस्टन इज एन एग्जांपल फॉर नॉन ओमिक रेजिस्टर। Okay, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now factors affecting the resistance of a conductor, very important point. इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। हर फैक्टर को जानना चाहिए कि कैसे डिपेंड, पहले तो ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड, पहले तो ये जानना है, एंड हाउ डज इट डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स, ये दूसरा हमें जानना है।
So factors affecting the resistance of a conductor, the resistance of a conductor depends on the following 4 factors. पहला, material of a conductor. आप कंडक्टर किस मटेरियल का बना रहे हो इस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, राइट. तो जिसको हम लोग बेसिकली रेजिस्टिविटी से मेजर करते हैं, इस मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी से मेजर करते हैं. हर एक मटेरियल का अपना एक अलग रेजिस्टिविटी होता है, राइट, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं. सो resistivity of a material decides what will be the resistance of that conductor, है ना. So resistance of a conductor depends on the material of conductor. Second, length of conductor, length of conductor पे depend करता है. बाद में अभी हम लोग देखेंगे resistance is directly proportional to length. जितना ज्यादा इंक्रीज कर दोगे उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा रेजिस्टेंस, और जितना कम कर दोगे उतना कम हो जाएगा. और कैसे ये सब क्यों ऐसे डिपेंडेंट है उस पर भी बात करेंगे अभी हम. तीसरा क्या है, थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर. ये थिकनेस पे डिपेंड करता है. मतलब अगर एक वायर थिन है या दूसरा वायर थिक है, राइट, तो यहाँ पे थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है. टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, fourth factor is temperature. So thickness of conductor, temperature of conductor, length of conductor and material of conductor. These are the 4 factors on which this depends. So यहाँ पे देखो resistance depends. Resistance is inversely proportional to area of cross section and resistance is directly proportional to temperature. So अगर temperature increase करोगे तो resistance increase करेगा, या एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. एरिया इंक्रीज करोगे मतलब एक थिकर वायर का रेजिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू अ थिनर वायर, राइट. रेजिस्टेंस ऑफ अ थिकर वायर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ थिनर वायर. रेजिस्टेंस ऑफ थिनर वायर इज मोर, क्योंकि एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, राइट. देन वी हैव रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी तो हमें पता ही है, रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट. सो बाद में जाके अगर तुम इन सबको कंबाइन कर दोगे तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A. Sir, is rho a proportionality constant? Yeah, proportionality constant only, which actually depends on the material of the conductor. Okay. Means its value can be varied. Yeah, if you change the material, the value will change. Okay, sir. See, if we are using copper, you will get some other resistivity. If you are using aluminum, you will get some other resistivity. If you are using iron, you will get some other resistivity, and so on. Okay, sir. Done? Yes, sir. Now, how does it depend on each of these is what we are going to discuss. So depend first क्या था? सर एक चीज पूछना था, जैसे कि सर हमारे बुक में सबके सब मेटल के कंडक्टर्स रेजिस्टेंस दिए हुए. सर अगर किसी मेटल का हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो सर अगर उसका ये ग्राफ स्लोप में नहीं हुआ तो सर उसका कैसे निकालते हैं? ग्राफ स्लोप में नहीं हुआ मतलब ग्राफ स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो? यस सर. देखो, कभी भी जब हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस जब निकालते हैं तो ग्राफ एक्सपेरिमेंटली हम लोग वोल्टेज और करंट को निकालते हैं. मान लो मेरे पास एक कोई भी ऐसे मटेरियल दिया हुआ, इसके अक्रॉस हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक वोल्ट मीटर यहाँ लगाया और इस पॉइंट पे एक एमीटर लगा दिया.
और ये वोल्टेज हमें पता है कि क्या हम जान रहे हैं। अब वोल्टेज जैसे जैसे हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को जैसे जैसे चेंज करेंगे करंट भी चेंज होगा। हम लोग हर पॉइंट पे वोल्टेज और करंट नोट करते जाते हैं। मान लो ऐसा यहाँ पे एक आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ आया। उसके बाद इसको फ्री हैंड डायग्राम फ्री हैंड से ऐसे ड्राइंग कर देंगे। ये कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, राइट। हमने वोल्टेज और करंट के 4 वैल्यूज प्लॉट की। मतलब पहले वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट रखा तो करंट 1 एम्पियर आया। फिर हम लोगों ने वोल्टेज लेट से 15 वोल्ट रखा तो करंट कुछ 3 एम्पियर आ गया, राइट। इस तरह से अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया, है ना। और उसको प्लॉट कर लिया। जब हम लोगों ने टेबल बनाया, जैसे एक्स वाई एक्सिस के लिए, ये लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग जो बनाते थे, उसी तरह टेबल बना लेते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, राइट। कि वोल्टेज अगर लेट से 10 वोल्ट है तो करंट 1 एम्पियर है। वोल्टेज 15 वोल्ट है तो करंट हमारा 3 एम्पियर हो गया। और इसी तरह से वोल्टेज 20 वोल्ट है तो करंट जो है 7 एम्पियर हो गया है। और इन सब को हम लोग प्लॉट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। अब आपको जब रेजिस्टेंस निकालने बोलता है तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट के लिए बोलेगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज और करंट के साथ चेंज कर रहा है, राइट। तो आपको किसी पॉइंट यहाँ पे निकालने बोला कि कितने करंट पे, करंट जब हमारा कुछ 4 एम्पियर है उस पे आप निकालो। तो उस करंट पे आप करोगे, यहाँ पे एक टेंजेंट बना दोगे इस ग्राफ। और ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, ये स्लोप बेसिकली हम लोगों को रेजिस्टेंस देगा। तो उसके लिए हम लोग ये 2 पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करके इसका स्लोप निकालेंगे। ओके सर। Okay, so we were on to dependence of on material of a conductor. तो सारे फैक्टर्स पे हम लोग डिपेंडेंस देखेंगे। तो पहला डिपेंडेंस ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर अगर हम लोग देखते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल है तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होता है वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जितना कम होता है वो उतना खराब कंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो जब हम कह रहे हैं डिपेंडेंस ऑन मटेरियल, डिपेंडेंस ऑन मटेरियल मतलब कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पे डिपेंड कर। ओके, सो the substance which has a large concentration of electrons offer less resistances. They are called good conductor of electricity. But the substances which have negligible concentration of free electron, they offer very high resistance, so they are called insulators. दो तरीके का मेटल हो गया, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो हुए जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इंसुलेटर्स वो हुए जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा डिपेंडेंस ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। भाई हम लोगों ने बोला कि रेजिस्टेंस जो है ना लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे है लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अभी क्या होता है देखो, अगर लेंथ कुछ इतना है तो मान लो 10 टाइम्स कोलिजन होता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में 10 कोलिजन होगा। और अगर यही लेंथ को बढ़ा दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा ना। भाई पॉजिटिव आयंस तो ज्यादा होंगे ना रास्ते में जो इसको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन को। जब इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस विच इट कम्स अक्रॉस विल बी हायर इफ द लेंथ इज इंक्रीज। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So if the length is increased, probability of collision of electron with the positive ions, that will also increase. And in that case we say that as the length increases, resistance also increases. क्योंकि जितना collision होगा उतना बार उसका स्पीड कम होगा और उतने देरी से वो एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचेगा। तो इसीलिए अगर कोलिजन ज्यादा है तो इसका मतलब कि, और लेंथ के इंक्रीज करने से कोलिजन बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है बच्चों? सो डिपेंडेंस ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर
in a long conductor, the number of collisions of free electron with the positive ion will be more as compared to a shorter one. So therefore, a longer conductor offers more resistance. In fact, the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. Right? So resistance is directly proportional to the length of the conductor. Clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड इज डिपेंडेंस ऑन थिकनेस ऑफ कंडक्टर. अब देखो कोई अगर पतला कंडक्टर है, थिन कंडक्टर, और दूसरा अगर थिक कंडक्टर, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयंस हैं, इसमें कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि लेस स्पेस में आयंस है. और जब अगर थिकर हो जाएगा तो यहाँ पे आयंस थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, आयंस दूर दूर हो जाएगा. वाई? बिकॉज इसको ज्यादा स्पेस मिल रहा है. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे बिना कोलाइड किए ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर सकता है. तो बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन बिना कोलिजन के ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर सकता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेस होगा. तो R is less in this case and R is more in this case, right? तो इसका मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. क्लियर है? Yes, sir. So dependence on the thickness of conductor. In a thick conductor, electrons get a large area of cross section to flow as compared to thin conductor. Therefore, a thick conductor offers a less resistance. The resistance of conductor is inversely proportional to its area of cross section, normal to the direction of flow of current. That is, R is inversely proportional to area of cross section. So if the radius of wire of same length is doubled, or area of cross section becomes 4 times, its resistance becomes 1/4. So becomes 2 times. Sorry, यहाँ पे 2 times कर देंगे. अच्छा, ये जो चीज है ना, ये अभी हम लोग बात करेंगे. जस्ट इसको जब कंप्लीट कर लेंगे तो आई विल कम टू दिस ऑल्सो, हाउ इज दिस कमिंग, मैथमेटिकली निकाल के बताएं. Now dependence on the temperature of conductor. So with the increase in temperature of a conductor, the random motion of electron increases. तो टेम्परेचर पे मैंने बोला था कि कंडक्टर के if resistance is directly proportional to temperature, that means if you increase the temperature, the resistance will also increase. कहाँ से ये आता है? किसी if you increase the temperature, what is going to happen is the electron will start moving in random motion more vigorously. Why more vigorously? Is because जब आप टेम्परेचर देते हो, इंक्रीज करते हो, तो रैंडम मोशन इंक्रीज कर जाता है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोशन यही कहता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करने लगे. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? रैंडमली ज्यादा तेजी से मूव करने लगे. रैंडमली अगर ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो इसका कोलिजन का चांस क्या है? इंक्रीज कर जाएगा ना भाई. पहले जा रहा था स्ट्रेट, है ना, ये स्ट्रेट जा रहा था, बाद में ये ऐसे जिगजैग मोशन में जाने लगा. अब यहाँ पे जो आयंस है उनसे टकराने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी ना अगर रैंडम मोशन में मूव करेगा. जिगजैग मोशन में अगर मूव करता है तो इसका कोलिजन का जो चांस है वो इंक्रीज कर जाएगा और इसके वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा. सो with the increase in temperature of a conductor, so with the increase in temperature, the random motion of electron increases. As a result, the number of collision of electron with the positive ions increases. Hence, the resistance of conductor increases with an increase in its temperature. Clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को तो यही जो टेम्परेचर का, अगर हम लोग, मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ, वोल्टेज करंट ग्राफ, वीआई ग्राफ, सो लेट्स से वी हैव अ वीआई ग्राफ ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। सो मान लो ये वीआई ग्राफ एट टेम्परेचर T1 है सेम रेजिस्टेंस का और T2 पे टेम्परेचर, और हम कह रहे हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 इज ग्रेटर देन T2 तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका जो होगा R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, तो ऑब्वियसली बिकॉज स्लोप इज ग्रेटर, R1 इज ग्रेटर देन R2। दिस इज व्हाट वी वांट टू से कि अगर आपको कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ गया और तुमसे पूछा कि विच रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए और रेजिस्टेंस ऑफ बी कौन सा बड़ा है, और दे रखा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हमें पता है कि इसका स्लोप ज्यादा है T2 वाले के स्लोप से, so that means resistance of A is greater than resistance of B. Now two straight lines A and B on the VI graph for a conductor at two different temperatures, T1 and T2 respectively. The straight line A is more steeper than the line B. So this straight line is more steeper as compared to line B because the resistance of conductor is more at higher temperature T1. Than at lower temperature T2. So हमें पता है कि स्लोप इसका ज्यादा है A का B से, तो दैट मींस रेजिस्टेंस इज मोर एट T1 देन एट T2। सो इससे क्या ये भी आ गया ना कि T1 अगर T2 से ज्यादा है तो रेजिस्टेंस एट T1 विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट T2। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा था उस पर बात करते हैं। हम लोगों ने क्या बात किया अभी, 3-4 चीजें की। पहला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और दूसरा हमने किया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये दो को यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, राइट इट इन योर कॉपी एवरीवन, नोटबुक। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, डोंट स्विच ऑफ योर कैमरास। सो if a conductor is stretched to double its length, if a conductor is stretched to double its length, ये भी लिख लेना, if a conductor of resistance capital R is stretched to double its length, what will be the new resistance? So see here everyone and understand, हमारे पास एक कंडक्टर था, इसका लेंथ L था, एरिया A था। इसको हम लोगों ने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके खींच दिया भी। खींचने पे क्या होता है, इसका लेंथ जो है डबल हो जाता है, मतलब लेंथ 2L हो गया। लेंथ 2L हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे? सर इसका एरिया होगा 4 times. लेंथ डबल कर रहे हो तो एरिया हाफ हो जाएगा ना, तभी Okay, okay. वॉल्यूम सेम रहेगा। लेंथ इंटू एरिया इज 2L इंटू A/2। यस सर। Okay, sir. तो आप खींचोगे तो इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, मतलब लेंथ इंटू। इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। नहीं, रुक जाना भाई, सब चीज एक बार में मत जा आगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे। अभी लेंथ और एरिया है इसका, और लेंथ को हम लोगों ने खींच दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले ये समझो क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इज गोइंग टू बी सेम, वॉल्यूम इज गोइंग टू बी सेम, राइट? वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। तो पहले लेंथ इंटू एरिया था, मान लो बाद में अगर 2L कर दिया और एरिया A' कर दिया, तो जो एरिया A' है वो किसके बराबर आ जाएगा, A/2 के बराबर आ जाएगा। कोई भी चीज को हम खींचते हैं तो वो पतली होती जाती है ना, एरिया हाफ हो जाएगा, राइट?
लेंथ अगर डबल होगा तो। अब हमारे पास लेंथ और एरिया पता चल गया। इनिशियली रेजिस्टेंस आर है, वो कितना होगा, रो एल बाय ए होगा। इसका लेंथ एल है, एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी रो है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए लिख सकते हैं ना। यस सर। अब दूसरे केस में जो नया रेजिस्टेंस इसका है आर डैश, वो हमें निकालना है, ठीक है। आर डैश विल बी इक्वल टू रो, मटेरियल तो सेम रहेगा ना, खींचने पे भी मटेरियल तो चेंज करेगा नहीं, तो रेजिस्टिविटी रो ही होगा। लेंथ डबल हो गया, 2L हो गया, और एरिया हाफ हो गया, ये A/2 हो गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स रो एल बाय ए हो गया। रो एल बाय ए हमें पता है रेजिस्टेंस होता है आर, इक्वेशन 1 से, तो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया। तो उसके लेंथ को अगर डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। आगे समझ मानवे, डबल नहीं होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया भी तो हाफ हो रहा था ना। Is it clear to everyone? Naisha, Adit, Lara, Yes. Yes, sir. It's clear. आलिया एंड अतुल, आपको भी आगे समझ, विवेक? Yes, sir. Yes, sir. Please note it down, everyone. So, new resistance will be 4 times the actual resistance. On increasing the length by 2 times, on stretching it by 2 times, the resistance decreases 4, resistance increases 4 times. So new resistance is 4 times the original resistance. ऐसे भी समझो ना, ये हमारा जो है, इसको खींच के डबल कर रहे हैं तो पतला हो रहा है वायर, पतला होएगा तो थिनर वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना, हम लोगों ने किया है ना, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए 4 टाइम्स हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. Write down the next one now. Second question. If a conductor of resistance R having length L and area equal to A. So if a conductor of resistance R having length L and area equal to A is doubled on itself, what will be the new resistance? अब Sir, देखो 4 और times. समझो, अब देखो और समझ लो पहले। Can you see this wire? Right? Yes, sir. Yes. इसका मान लो अगर कुछ लेंथ है, इसको हम लोग को डबल कर देना है, मतलब इसी वायर को इस तरह से डबल करके लगा देना, ऐसे डबल कर देना, राइट। इसको हम लोगों ने फोल्ड के क्या किया, डबल कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. तो डबल करने से क्या होगा कि लेंथ जो है हाफ हो जाएगा। मान लो हमारे पास वायर ऐसे है, ये पूरा वायर है हमारा,
इसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसको जब डबल कर देंगे तो इसका लेंथ हो जाएगा हाफ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा बताओ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? अरे डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। ओके सर। भैया इसका एरिया ए है, अब ऐसे ऐसे 2 वायर हो गए तो डबल नहीं हो जाएगा? इतना कौन सा रॉकेट साइंटिस्ट बन रहे थे सोच के? लेंथ हो रहा है हाफ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा डबल, राइट? ओके सर। तो अब जब रेजिस्टिविटी रो था तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A था। अब जब इसमें रेजिस्टिविटी तो चेंज करेगा नहीं, नया रेजिस्टेंस रो इनटू लेंथ इज L बाय 2 डिवाइडेड बाय 2A, तो ये क्या हो जाएगा? रो L बाय 4A। तो रो L बाय A हमारा रेजिस्टेंस है, राइट? तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? R बाय 4। तो जब हम लोग डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है, और जब हम लोग इसको मतलब जब इसको मोड़ के डबल कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं सॉरी, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जा रहा है। और जब खींच के इसको लेंथ डबल कर दे रहे हैं, सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे सर लेंथ L/2 कैसे हो गया? इसको मोड़ के आधा कर दिया तो हाफ नहीं होगा? मेरे पास एक इतना लंबा वायर है, इसको ऐसे बीच से ऐसे मोड़ के और डबल कर दिया तो आधा नहीं हो जाएगा? सर लेकिन क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ नहीं है कि डबल करके या एक्स्ट्रा वायर लगा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इटसेल्फ मतलब एक्स्ट्रा दूसरा लेके आ गए। है ना? अंग्रेजी नहीं आता है क्या? ये लिखा है रेजिस्टेंस R है जिसका लेंथ L है, एरिया A है, और इसको डबल कर दिया इसी के ऊपर। डबल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब ये जो वायर है इसी को मोड़ के डबल कर दिया, दूसरा वायर नहीं लेके आए खरीद के, और बड़ा वायर नहीं बनाया हमने, जो वायर था उसी को मोड़ के डबल कर दिया। तो जब उसी वायर को डबल किया तो लेंथ हो जाएगा हाफ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा डबल। ओके सर। लिख लो सब लोग। सो यहाँ पे लिखोगे द रेजिस्टेंस, द न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। The new resistance is 1/4 the original resistance. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Great. अब नेक्स्ट क्लास में ये सब हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके आगे जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद सर्किट के न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर लेंगे फिर हम, ठीक है? तो वहां से एक्चुअल तुम्हारा न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, वो उसी से ज्यादा पूछे जाते हैं सर्किट वाले क्वेश्चंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो गया या फिर करंट निकालना हो गया या वोल्टेज निकालना, ठीक है? यस तो सर। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट में मिलते हैं फिर से। ठीक है सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.